Honorable President Shamshad Darbi sir, President Ishwar Rao, CITU, General Secretary Usman Garu, Corona Committee members, वगैरह అందరికీ స్వాగతం పలుకుతున్నాం. ఈరోజు మనం జనరల్ బాడీ పెట్టడానికి కారణము కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు ఉన్నాయి. అందుకని జనరల్ బాడీ కాల్ చేయవలసి వచ్చింది. అది కాదిరి సాబు విశ్వనాథ్ చెప్తారు. దాన్ని మీరు ఆలోచించి ఏం చేయాలో మీరే నిర్ణయం తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం. ఎందుకంటే మజ్దూర్ యూనియన్ వాళ్ళు ఎలక్షన్ పెట్టినాక ఒక నిర్ణయించారు. అది ఇప్పటివరకు ఏం యాక్షన్ లేదు. కనీసం 8 నెలలన్నా పునరుద్ధరించి ఇప్పటివరకు ఏం యాక్షన్ లేదు. సో దాని గురించి ముఖ్యంగా మాట్లాడాలి. ఎందుకంటే వచ్చే ఏప్రిల్ నెలలో మళ్ళీ మన కొత్తది ఇంప్లిమెంట్ అయ్యేది. ఆ విషయాలు ఆలోచించుకొని మీరు డిసిషన్ తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మన వర్కింగ్ మన ఆనరబుల్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఈశ్వరరావు గారు మాట్లాడతారు. Honorary President Padri Saab and office bearers and dear comrades, మనం ఈరోజు అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి జనరల్ బాడీ పెట్టుకుంటున్నాము. ప్రధానంగా కరోనా వైరస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత 2.5 ఇయర్స్లో మనం జనరల్ బాడీ పెట్టుకోలేకపోయాం. కారణం ఏంటంటే పర్మిషన్స్ లేవు, డబ్బు చాలా రోజులు బంద్ ఉంది. దాంతోపాటు పోలీసులు పర్మిషన్, ఎక్కడ మీటింగ్లు పెట్టిన పోలీసులు వచ్చి చాలా గడబడి చేయడం, ఇట్లాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు మనం జనరల్ బాడీ పెట్టుకోలేకపోయాం. సో ఇప్పుడు కరోనా తగ్గింది కాబట్టి వెంటనే మనం జనరల్ బాడీ పెట్టి మన యొక్క కార్మికుల యొక్క సమస్యలను ఇమీడియట్లీ మనం టేకప్ చేయాలని చెప్పి ఆఫీస్ బేరర్స్గా, కమిటీ సభ్యులుగా కాదిరి సాబ్తో కూడా మాట్లాడి ఒక ప్రయత్నం చేశాము. ఈ మీటింగు ఈరోజు జనరల్ బాడీ జరగాలనేది 1 వీక్ బ్యాక్ అందరికీ నోటీసులు కూడా వేసాము. మేనేజ్మెంట్ దగ్గర పర్మిషన్ కూడా తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు మన ముందున్నటువంటి అత్యంత కీలకమైనటువంటి 3 అంశాలు ఉన్నాయి. 3 అంశాల మీద మన ఆనరరీ ప్రెసిడెంట్ కాదిరి సాబ్ మీకు ప్రజెంటేషన్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత మీరు మాట్లాడండి. అందరూ మాట్లాడాలని లేదు, ఎవరెవరైతే మాట్లాడగలుగుతారో వాళ్ళు మాట్లాడండి. మీ యొక్క సజెషన్స్, సలహాలు ఇంకా ఏమైనా చెప్పగలిగితే మీరు చెప్పండి. చెప్పిన దాని తర్వాత నేను ఫైనల్గా ఫినిషింగ్గా యూనియన్ ప్రెసిడెంట్గా నేను ఫినిష్ చేస్తాను. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీరు బాగా ఆలోచన చేసి, మంచిగా ఆలోచన చేసి మీ విషయాలన్నీ కూడా మాట్లాడండి. మనకు చాలా టైం ఉంది. ½ అన్ అవర్ కాదు, 1 అవర్ అయినా మనం జనరల్ బాడీ జరుపుకోవచ్చు. హరిబిరి ఏమొద్దు. మీరు చెప్పే మాటలన్నీ విన్న తర్వాత మేము నిర్ణయానికి పక్కన కంక్లూడింగ్ చేస్తాము. ఆ రకంగా ప్రొసీడ్ కావచ్చు అని చెప్పేసి నేను మీ దృష్టికి తీసుకొస్తూ ఇప్పుడు మన ఆనరరీ ప్రెసిడెంట్ శంషాద్ కాదిరి సాబ్ మాట్లాడాలని విజ్ఞప్తి చేస్తాను. बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वर साहब. सबसे पहले तो मैं आप तमाम मेरे साथी इंफ्लुएंस को दिल की गहराइयों से उनको नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग. जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि पिछले 3 साल से हम लोगों ने जिस तरीके से कोविड में मुसीबतें उठाई, जिस तरीके से हम जो है बगैर तनख्वाह के भी, आधी तनख्वाह के भी हमने काम किया, तो मैं समझता हूँ कि ये मौका बड़ा गनीमत मौका था हमारे लिए, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल करीब है. 31 मार्च को हमको जो है हमारा नया मेमोरेंडम भी मैनेजमेंट को पेश करना है. तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि फरवरी के महीने में अगर हम मीटिंग रखेंगे तो उसके बाद हमको 15 मार्च से पहले हमारा चार्टर डिमांड वहाँ पर मैनेजमेंट के सामने पेश करना है. जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि मैं क्रिटिसाइज जो करता हूँ खराबी के लिए नहीं, भलाई के लिए हम करते हैं. चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, हमको किसी से किसी किस्म का भय नहीं है. हम निज़ाम तलब की अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं. यहाँ जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने अपनी अंतिम मेहनत
अपनी कोशिशों से निज़ाम तलब का नाम भी जो रोशन किया है, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से हम मेहनत से काम करते हुए निज़ाम तलब का नाम सारी दुनिया में जो है सही तरीके से इस बात का हम सबूत देंगे कि निज़ाम तलब के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हर तरीके से मुस्तैद रहते हुए अच्छे से अच्छा काम करके निज़ाम तलब का जो है नाम रोशन करेंगे, और हमारी यूनियन का नाम भी इसमें यकीनन रोशन होगा। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब आज के इस मुश्किल दौर में महंगाई आसमान को छू रही है। अब आपको हमको ये सोचना है कि मैनेजमेंट से किस तरीके से हमारे मुतालबात उनके सामने रख के किस तरीके से मनवाए जाए। अब इस मरतबा हम ये चाहते हैं कि हमेशा से हमारी यूनियन की एक पॉलिसी रही है कि सबके मशवरों से, सबकी बात सुनने के बाद, सबके जो है इरादे क्या हैं, उनके इरादे जानने के बाद ही हम मैनेजमेंट को हमारा चार्टर्ड ऑफ डिमांड पेश करने की हम कोशिश करेंगे। वो इसलिए कि अगर हम मैनेजिंग कमेटी बैठ के उनको डिमांड्स एंड ग्रेसेस तैयार करेंगे, जाके देने के बाद किसी और के दिमाग में एक बात आएगी, या जमीर के दिमाग में एक बात आएगी, या और किसी और के दिमाग में कोई भी हो, तो इसके लिए हमने इस बात का फैसला किया एसोसिएशन की जानिब से कि हम सबसे पहले हमारी जब बातचीत ख़त्म होंगी उसके बाद तमाम जो यहाँ बात करना चाहते हैं, जो अपने मुश्किलात को पेश करना चाहते हैं, वो यहाँ आके बगैर डरे के निडर होकर आप बात कर सकते हैं। और हमेशा से हमारी यूनियन की पॉलिसी रही, जब 2 यूनियन भी थे तो हमने राइवल यूनियन वालों को भी अपने गले से लगाते हुए इस बात का हम सबूत दिया कि जो राइवल यूनियन के एम्प्लॉइज भी हैं वो हमारे भाई हैं, और काफी अहमद जब तक हम एसोसिएशन में रहेंगे उनको अपना भाई समझते हुए हमने तमाम मुतालबात को जो है मंजूर कराने की हम कोशिश की। आने वाले दिनों में भी उसी अंदाज में हम बात करेंगे। अब इलेक्शन का पीरियड हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है। एक और खास बात आपके सामने कहना चाहूँगा कि अब तक हमने तलब में इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज जिस तरीके से हमारे वेजेस बढ़ना चाहिए था, जिस तरीके से हमारी तनख्वाहें बढ़ना चाहिए था, जिस तरीके से हमारा बस पास बढ़ना चाहिए था, जो भी अलाउंस बढ़ना चाहिए था, और जो भी अलाउंसेस है मैनेजमेंट की तरफ से हमको दिए गए थे, उनके लिए अब इस मरतबा हमने ये सोचा है कि लड़ाई झगड़ा करने के बजाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मैनेजमेंट हो, सदर हो, ऑनरेरी सेक्रेटरी हो, और हम सब मिलकर, सिर्फ पार्टी नहीं, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं, बल्कि हम सब मिलकर एक नतीजे पे पहुंच के एक ऐसा हमारा दस्तूर हम तैयार करेंगे, हमारा चार्टर्ड ऑफ डिमांड, ताकि मैनेजमेंट को हमारे से लड़ने की जरूरत ना पड़े, और हम मैनेजमेंट से लड़के हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे या एहतजाज करेंगे या धरना देंगे। ये इन सब चीज़ों से बचते हुए, क्योंकि धरना हो या हंगर स्ट्राइक हो, इन सब चीज़ों से मैनेजमेंट का भी नुकसान होता है और हमारा भी नुकसान होता है। तो हम ये चाहते हैं कि मैनेजमेंट से दोस्ताना ताल्लुकात रखते हुए, उनसे अच्छी तरीके से बात करते हुए हमारे जो मुतालबात हैं उनको हम मनाने की हम कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे अहम बात यह है कि अगर आप तमाम हजरात यहाँ पर जितने बैठे हैं, जितने मेरे एम्प्लॉयज़, मेरे भाई यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं उनसे खुसूसी तौर पर ये बात कहना चाहूँगा कि अब तक तो इलेक्शन होता था, 2 यूनियन लड़ते थे, यानी बहुत ज़्यादा हुकूमत का भी खर्चा होता था और आपस की जो रंजिश भी ज़्यादा बढ़ती थी। मैं तमाम जितने भी राइवल यूनियन हो या रिकॉग्नाइज यूनियन हो, उन तमाम से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अपना दिल साफ करते हुए बिल्कुल फेयर एंड फ्रैंक इस बात का फैसला कर लीजिए कि क्या आने वाले फिर इलेक्शन आपको लड़ना है या फिर इसी यूनियन को कंटिन्यू करते हुए, इसको जो है रिकग्नाइजेशन देते हुए हम सब मिलजुल के अगर काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा एक मशवरा है। मैं किसी के ऊपर दबाव डालना नहीं चाहता, मैं किसी को प्रेशराइज करना नहीं चाहता। अगर एक यूनियन रह के अगर काम करेगी तो मैनेजमेंट के ऊपर भी इसका एक अच्छा इम्पैक्ट बैठेगा। एक यूनियन अगर रहेगी तो सब एक साथ रहेंगे, चाहे वो धरना प्रोग्राम हो या अपने मुतालबात मनाना हो या काम करना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए सोचते हुए अभी आपके पास किसी किस्म की कोई जल्दी की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एक ही यूनियन हो इस डिपार्टमेंट में, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में तमाम एम्प्लॉयज़ का इसमें भला भी होगा और तमाम लोग मिलजुल के काम करते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए हम काम करते हुए मैनेजमेंट को हम अपने मुतालबात मनवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे। वरना इसमें किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जमहूरियत है,
हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरियत में हर किसी को हक है कि वो इलेक्शन लड़े, अपनी बॉडी बनाए, नई जो है यूनियन कायम करे। हमको इसमें किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी एक पर्सनल आपसे गुजारिश है। अब तक मैं समझता हूँ कि पिछले 10-15 साल से आपकी खिदमत करते आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरी आखिरी सांस बाकी रहेगी मैं आपकी खिदमत करते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचाने की भी कोशिश करूँगा। तो इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए हमको ये सोचना है कि हम जब इतनी मेहनत करते हैं क्लब के लिए, सुबह से शाम तक हम काम करते हैं, रात में 12-12 बजे तक हम काम करते हैं। अब कुछ बातें सुनने में आई हैं कि किसी की ड्यूटी के टाइमिंग बढ़ा दिए गए हैं, किसी को कुछ किया जा रहा है, किसी को वहाँ से हटाया जा रहा है, किसी को यहाँ से हटाया जा रहा है। तो इस मरतबा एसोसिएशन ने ये सोचा है, अब एक मिनट सामने अब तक जो हो गया गुजर गया। मैं आप तमाम मेरे तमाम भाइयों से, जितने वर्कर्स हैं, ये मत समझिए कि शमशाद कादरी प्रेसिडेंट है या ईश्वरराव साहब हैं या हमारे उस्मान साहब हैं या सामिल साहब हैं, यहाँ कोई बड़े नहीं है, सब एक साथ हैं। हम आपका साथ देते हुए इस बात का हम सबूत देना चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपकी जितनी मुश्किलात पिछले 10-15 साल से आप गुजारते आए हैं, उन मुश्किलात को दूर करते हुए हम इस बात की कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आने वाला जो हमारा नया मामला जो होगा, वॉलंटरी एग्रीमेंट जो होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। तो मैं तमाम मेरे जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं उनसे मैं इस बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस मरतबा सोच लीजिए, एक यूनियन होना है या 2 यूनियन होना है या इलेक्शन होना है, हमको किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन इसमें नहीं है, ना हम किस पे दबाव डालना चाहते हैं। मगर मेरी एक आपसे हमदर्दाना अपील ये है कि अगर वाकई आपके मुतालबात को हल करना है, आपके जो है प्रॉब्लम्स को हल करना है, आपके तकलीफ़ात को दूर करना है, आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होना है, आपके टीए में बढ़ोतरी होना है, वॉशिंग ऑर्डर्स में आपकी बढ़ोतरी होना है, तो हम सब मिलकर मैं समझता हूँ कि जो मुट्ठी का जो ये निशान जो है, इसका मतलब है एक जगह होने से इसमें जो ताकत बढ़ेगी, खुले रहने में हमारी ताकत नहीं बढ़ती। फिर एक मरतबा मैं आप तमाम नौजवान साथियों से, खातून लेडीज़ भी यहाँ बैठी हैं, उनसे भी मेरी पर्सनल गुजारिश ये है कि आप सोच लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में एक यूनियन यहाँ काम करे, एक यूनियन का जो यहाँ बोलबाला हो, चाहे वो हमारी यूनियन है या आने वाली यूनियन हो, बोलबाला हो, तो इसके लिए आप अच्छे दिल से इस बात से गौर कीजिए कि वाकई अगर एक यूनियन ही तो हमको क्या फ़ायदा होगा, 2 यूनियन से हमारा क्या नुकसान होगा। इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए आप लोग इस मीटिंग के बाद तस्वीर कीजिए। अगर आप सब तैयार हैं तो यहाँ पर ड्राफ्ट हम तैयार करेंगे, उसके बाद आपसे सबसे मालूमात करने के बाद आपके सिग्नेचर लेने के बाद भी कोई फैसला इसमें किया जाएगा। मैं एक मरतबा फिर आप तमाम नौजवान साथियों से और जितने मेरे एम्प्लॉइज़ यहाँ पर काम कर रहे हैं, मैं उनको दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 2 ईद भी गुजर गए, दशहरा भी गुजर गया, दीपावली भी गुजर गई, हम कोई ईद मना नहीं सके, कोई जलसा नहीं कर सके कोविड की वजह से, तो उन सब ईदों की भी मुबारकबाद देता हूँ। मगर एक बात आप क्या सोच लीजिए कि अब आने वाला वक्त बहुत बुरा वक्त आने वाला है, आपको हमको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए यहाँ जितने हजरात बैठे हैं, ये बात सोच लीजिए कि वाकई अगर हमको अपनी भलाई चाहिए, हमको अपने बच्चों की अच्छी तालीम चाहिए, हमको अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छे कपड़े पहनाना है, उनको अच्छी सहूलत देना है, तो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए आप इस बात का तस्वीर करेंगे कि 2 यूनियन होना या 1 यूनियन होना, क्योंकि कोई भी यूनियन हो एम्प्लॉयज़ के लिए काम करती है। तो आप ये सोच लीजिए, उसके बाद जैसा भी लायामल होगा, जैसा भी प्रोग्राम होगा, उसको तैयार करेंगे। और हमको आने वाले जो हमारा चार्टर का डिमांड है हुकूमत के मैनेजमेंट के सामने हमको जो पेश करना है, उसके लिए हमको आसानी होगी। और चार्टर का डिमांड सबमिट करने से पहले आप तमाम से मशवरा किया जाएगा, आपकी क्या तकलीफ है, आप क्या चाहते हैं, आप इस डिमांड्स में क्या क्या आपके डिमांड करना चाहते हैं, उन सब के बातें सुनने के बाद, उन सब के जो इख्तियारात सुनने के बाद ही हम कोई फैसला लेंगे, आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। बहरहाल फिर एक मरतबा तमाम नौजवान साथियों से और मेरे लेडीज़ यहाँ बैठी हैं, उनसे भी मैं इस बात की गुजारिश करूँगा कि अच्छी सोच रखते हुए, अगर ये जमहूरियत में हर किसी को हक है, मैं आपको गाली देता हूँ, आप मुझे गाली देते हैं, शमशाद कादरी ने रहना, ईश्वरराव ने रहना, खादर साहब रहना, ये सब आपसी इख्तिलाफात हैं। मगर जब हम एक जगह एक मंच पे जब हम बैठते हैं तो सब एक फैमिली की तरह होते हैं, कभी किसी से गुस्से की बात भी निकल जाती है। तो आपको हमको ये सोचना है कि हम एक फैमिली में बैठ के बात कर रहे हैं, अगर कुछ हमारे से कुछ गलती हो गई, मैनेजमेंट से गलती हो गई या हमारे से गलती हो गई,
तो अकरार की टेबल बैठ के हम बात कर सकते हैं और उस बात के ज़रिए से हमारे जो आपसी इख्तलाफ आते हैं उसको यकीनन ख़त्म कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह और भगवान आपके हमारे सब दिलों को एक साथ मिलाते हुए इस बात की हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एम्प्लॉइज़ का फ़ायदा होगा। आपस में लड़ाई झगड़ा करने से हमारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब रहा मैनेजमेंट का बात, अगर मैनेजमेंट जिस तरीके से हम अच्छी तरीके से उनसे बातचीत करके हमारे एम्प्लॉइज़ के तकलीफ़ों को दूर करने की अगर हम बात करेंगे, अगर मैनेजमेंट सही तरीके से मानेगा, सही तरीके से हमारे जो पे फिजिशन का मामला हो या जो भी हमारा DA का मामला हो या वेलफेयर फंड का मामला हो, उसमें भी कुछ लोगों के ख्यालात आए थे, दो अल्फाज करते हुए फिर बाद में मैं अपनी जगह लूँगा। जैसा कि रिटायरमेंट के बाद 50,000 रुपये आपके जो है वेलफेयर फंड से दिए जा रहे हैं, ये बड़ी अहम बात है। अभी मेरे नज़र में आई, कोई आके मेरे सामने बोल के गए कि साहब रिटायरमेंट का 50,000 फिर उसका ज़रा मामला थोड़ा है, जबकि वेलफेयर फंड खास तौर से एम्प्लॉइज़ के लिए साइन किया गया है। तो कम से कम जब हमारा रिटायरमेंट होगा तो कम से कम आप 2 लाख के लिए अगर आप मैनेजमेंट से हमारे रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो शायद आने वाले दिनों में तो कि हम सही तरह से रोटी खा सकेंगे। तो मैं यकीनन जिनकी साहब ने ये मेरे सामने आके कही है, तो यूनियन इस बात की कोशिश करेगी कि आप रिटायरमेंट के बाद कम से कम मैनेजमेंट से बातचीत करके हमारा जो वेलफेयर फंड है उसको 2 लाख रुपये दिलाने की हम कोशिश करेंगे। फिर एक मरतबा मैं तमाम नौजवान साथियों का, ख़वातीन का या जितने हजरात बैठे हैं जिन्होंने हमको पिछले 2 साल से हमको मौका दिया, आपको ये बात खास तौर से कहना चाहूँगा कि मेरी सेहत अच्छी नहीं होने के बावजूद भी हमने जिस वक्त पीक आपका कोविड का मामला चल रहा था, उस वक्त उस्मान साहब और हमारे सैमल साहब ने मुझे बुलाया, हम आए, उनसे बात करें, 50% से 70% करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी हम तमाम यहाँ जितने ऑफिसर बैठे हैं और आप तमाम की मदद से इस बात की हम कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट इस मरतबा हमारे एम्प्लॉइज़ को तकालीफ दूर करते हुए हर तरीके से अच्छी बेसिक को फिक्स करें, जो भी हमारे अलाउंसेस है उसको फिक्स करें। भाई इसी उम्मीद के साथ ये सब उस वक्त मुमकिन है जब तक आप सब तमाम हमारा साथ देंगे। आप सबका साथ लेते हुए ही, आप सबकी जो है इत्तेहाद से ही हम मैनेजमेंट से बात करते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज़, जय हिंद। మీరు ఇట్లా कमीशन बैठे तो कुछ फायदा नहीं है। आने वाले दिनों में अपना अग्रीमेंट है अप्रैल 1 से मार्च 15 का बाद नया डिमांड्स लगाना पड़ता है मैनेजमेंट को नया डिमांड्स लगाना बोले तो हमारा दिल में थोड़ा रहता, दिमाग में थोड़ा रहता डिमांड्स। मेरा दिमाग में क्या है वो लगाए तो थोड़ा अच्छा नहीं रहता। आप लोग के दिल में क्या है, क्या पूछे तो अच्छा रहता, क्या पूछे तो आप लोग को अच्छा बेनिफिट मिलता, यही बोलना पड़ता है। कि जनरल बॉडी कहीं को लगाया बोले तो आप लोगों के दिल में क्या है, आप लोग दिमाग में क्या है, आप लोग की खुला बोल दिए तो हम लिख के आने वाले दिन में डिबेट्स में लगाने के लिए हमारे को थोड़ा अच्छा सजेशन मिल जाएगा। इसलिए आपको इतना जनरल बॉडी लगा के बात करो बोल के बोल रहा हूँ। आप लोग कोई नहीं आ रहा, 2-3 आदमी आए, बात कर अच्छे सजेशन से दे दिए। कोई भी आप लोग मर्जी से आके बात करने के, इधर आना बात करना थोड़ा मुश्किल बोलते यहाँ से बात करो। ఎవరైనా కూడా మీరు మంచి మంచి సలహాలు ఇవ్వండి, మీరు ఏం కోరుకున్నారో చెప్పండి। మీరు చెప్పింది మేము డిమాండ్ పెట్టిన తర్వాత అయ్యో అది పెట్టలేదు, అయ్యో ఇది పెట్టలేదు అనుకుంటే మీకు ఫాయిదా లాభం ఉండదు। మీరు ఏం చెప్పాలనుకున్నారు ఇప్పుడు చెప్పాలి, సిగ్గుపడద్దు। అంతా మన వాళ్ళు రోజు మీరు మాట్లాడుకుంటారు కదా, అక్క బావ అన్న తమ్మి అని అనుకుంటారు కదా, అట్లానే మాట్లాడుకోండి। ఏమి ఎవరు రాకపోతే ఎట్లా రాంగ్ ఆర్ రైట్ कोई भी कुछ सजेशन देने के ना इलेक्शंस होना नए होना एग्रीमेंट में क्या क्या लगाना है, सिंगल यूनियन है तो कैसा रहता है, सब कुछ अपने बड़े साहब बोल दिए ना। आप दिमाग में क्या है एक बार बोलो ना, माట్లాడతారా? आपको हेल्थ प्रॉब्लम से निकल गए समझो, ये पहला श्रीनिवास हेल्थ प्रॉब्लम से निकल गए समझो, उसको भी कुछ बेनिफिट मिलना भाई, तो वो तो जरूरी नहीं है उसको रिटायरमेंट तक करना। उसकी क्या मजबूरी है, बच्चों की शादियों के लिए भी थोड़े लोग रिटायर करके चले गए, ऐसे उसको रिजल्ट खड़े बच्चों के उनको बेनिफिट दे, उनको उसको मजबूरी क्या मजबूरी से कर रहा हूँ। वो आप लोग लड़ते हैं, नहीं तो आजीजी करेंगे, अपन सोच के आजीजी करेंगे, लड़ना नहीं हमारा, आजीजी करके रहना है।
आज से सबको फांसी पे उतारो। देखिए अभी आप मैं जो आपको बात जो बोलना चाह रहा था, आपके ख्यालात हासिल करना चाह रहा था, आज श्रीनिवास अपने आप को इतने जो है जज्बाती हो गए कि उनकी आँख से आंसू निकल गए। अगर आप लोग यहाँ के बोलने के लिए कुछ आप शर्मा रहे हैं तो अपनी जगह से खड़े करके आप बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब आप देखिए बेचारा अपनी दिल की तकलीफ जो बयान किया, हो सकता है ना भैया वो मालूम होने के बाद ही ये जो इनकी जो दिल की तकलीफ है ना, मैं इनके लिए आखिरी हद तक लड़ने के लिए तैयार हूँ, इनके लिए आखिरी हद तक लड़ने के लिए। तो इसी तरीके के सजेशन आप दीजिए ताकि हमको भी हिम्मत आए कि फिर हमारे पीछे भी कोई लोग हैं, हम उनके लिए आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसा लोग है समझो, हमको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, 100% आपके लिए लड़ेंगे। तो मैं आप हमारे साथ रहो, आपके साथ हम रहेंगे। बहुत बार यहाँ आके आपको थोड़ा बहुत आइए, आप खुद नहीं आइए, आपको बोलना है, आना है आपको। जब तक आप अपनी तकलीफ नहीं बोलेंगे हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं घर में आराम से सोते रहता हूँ, मैनेजमेंट तो हमेशा सोता ही रहता है। जो वैसे ही होने वाला है इलेक्शन, मतलब ये है कि अब अगर दूसरी यूनियन कॉन्टेस्ट नहीं करी तो वो यूनियन कंटिन्यू करने के बाद में इलेक्शन तो 100% होगा। सब हाथ उठा के जिसको जो इलेक्ट करना है वो सबको लेकर जो इलेक्शन करेंगे, यही बॉडी नहीं रहेंगी, इसमें सब पूरे वो यूनियन मिलके ही आगे बढ़ के काम करेंगे। ऐसा जो है यहाँ कोई मोनोपोली नहीं है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम टेलिंग यू, हम जो है अट्ला మా సొంతం ఏం పని చేయం, మీ అందరికీ కూర్చోబెట్టి అందరితో సలహాలు తీసుకున్న తర్వాతనే కొత్త బాడీ డిక్లేర్ చేస్తాం. ఇది ఏం బాధపడవద్దు, అది అయితే 100% అష్యూరెన్స్ మీకు ఇస్తాం. ఇంకా ఎవరైనా మాట్లాడండి. आज आपके सामने और एक मेहमान है जो ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के चीफ वाइस प्रेसिडेंट सैयद शमीमुल हसन आरिफ साहब हैं, जो वो भी जो है एम्प्लॉइज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं। हुकूमत में भी इनके जो है अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि 2 मिनट आप हमारे एम्प्लॉइज़ को मुखातिब करें। नमस्ते, मैं सैयद आरिफ हसन, मैं आपके सामने कुछ बताना चाह रहा हूँ। हम जैसे एम्प्लॉय एग्जाम करके है, हमारा काम होता है एग्जाम करके चलाना है। ये मैनेजमेंट ये हर चीज़ करती है सिर्फ एम्प्लॉय की तरफ से। अगर हम नहीं आते काम नहीं होता, काम नहीं हुआ तो मेंबर्स नहीं आते, मेंबर्स नहीं आए बिजनेस नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर जो है इतिहाद चलाकर इलेक्शन लड़ेंगे, या जो भी वसीम साहब डिसाइड करेंगे, एम्प्लॉय एक होंगे तो काम होगा तो मैनेजमेंट सामने हमारे हम डिमांड रख सकेंगे। मैनेजमेंट को मजबूर होना पड़ेगा कि हमारे डिमांड को सेटिस्फाई करके क्लियर कर सकेंगे। तो हम सबको चाहिए कि हम इतिहाद बना के रखें। अगर किसी के दिल में कुछ डाउट है, कुछ है तो क्लियरली सामने आके प्रेसिडेंट साहब से जो डिसाइड करें, डिस्कस करें। इंशाल्लाह सब मिलकर जो ना एक फाइनल डिसीजन लेंगे, उसके बाद जो ना इलेक्शन होगा। इससे प्रेसिडेंट साहब बता रहे थे कि वो बॉडी रहेंगे तो क्या इतिहाद कम हो जाएगा। जब इतिहाद कम होगा तो वोट चीज का फायदा मैनेजमेंट उठाएगा। अगर इतिहाद एक ही रह गया यूनियन का तो प्रेसिडेंट साहब जो बोलेंगे मैनेजमेंट के जाके लड़के बोलेंगे। ये ऐसे खालिद साहब है जिसको अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ, चाहे वो सीएम केसीआर हो या नरेंद्र मोदी साहब हो, वहाँ तक उनकी आवाज़ जाती है कि यहाँ बैठकर जो ना कई गरीबों का वो फायदा करते हैं। कमीशन के चेयरमैन के दिल्ली तक जाके जो कमीशन की जाती है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब से मुलाकात कई बार करे हो, मैं कुछ साथ में क्या था उनके, हमेशा गरीबों की जो ना मदद के लिए रहते हैं। तो आप जैसे यूनियन की बात से जो किस्मत वाले आप लोग का अपने से प्रेसिडेंट मिला हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि आप सब मिलकर उनका जो ना उनका इतिहाद बढ़ाए, उनका पावर बढ़ाए। आप सबके ये उन्हें इंशाल्लाह जीतते हुए करेंगे, हर चीज़ मेहनत करेंगे। लास्ट वीक उनका एंजियोग्राम हुआ है, डॉक्टर को कंप्लीटली बेड रेस्ट बोला था, लेकिन फिर भी आप लोग के वास्ते वो आज उठकर आए। गाड़ी चलाना बिल्कुल नहीं है, फिर भी सारे जो ना निकल के कैब में आ गए सिर्फ आप लेके लिए। हालांकि मैंने सुपारी बोला कि आप आराम कर लिया, पता है कि नहीं जाना है, मीटिंग जरूरी है, किनको भी आना है। तो मैं ये सबसे गुजारिश करूँगा, मैं तो आपके सामने बच्चा हूँ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँ आप सबसे कि आप लोग इतिहाद रखिए। इंशाल्लाह जो है ना सब डिमांड पूरे खालिद साहब और सामने साहब सब मिलकर जो है ना इंशाल्लाह क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके कॉमरेड्स, 1 2 3 4 5 5 सजेशंस इच्छाరు మాకు. कॉमरेड्स कोई बाहर है तो अंदर आ जाओ ना। ఒక 5 సజెషన్స్ ఇచ్చారు, మంచి సజెషన్స్ ఇచ్చారు, సలహాలు. ఇంకా మీకు ఛాన్స్ ఇచ్చాము కానీ మీరు ఎవరు కూడా రావట్లేదు. అయితే మీరు చెప్పినటువంటి విషయాల్లో ఇప్పుడు రిటైర్డ్ అయితే 5 months ఇస్తుంది మేనేజ్మెంట్.
దాన్ని మనం ఏం చేయాలనేది ఒకటి. అట్లాగే వెల్ఫేర్ ఫండ్ నుంచి కూడా మేము ముందే ఉస్మాన్ మేము మా సామ్యుల్ సాబ్ మేము మాట్లాడుతున్నప్పుడు అనుకున్నాము 2 lakhs వరకు పెంచాలనేది. వెల్ఫేర్ ఫండ్ అనేది మనదే పైసలు, అది మేనేజ్మెంట్ ఏం సలహా కాదు, కానీ మేనేజ్మెంట్ మనకు లెటర్ ఇస్తే మేనేజ్మెంట్ మనకు పక్క ఇవ్వాల్సిందే. అది 2 lakhs కోసం ప్రయత్నం చేయాలనేది ముందుగా అనుకోండి. మీరు కూడా చెప్పింది కూడా అదే ఉంది కాబట్టి ఇది నో ప్రాబ్లం. అయితే ఈ 5 months ఏదైతే ఇస్తా ఉందో దానిని మనం 1 year చేయించాలనేది ప్రయత్నం చేస్తాం మన యూనియన్గా. 1 year ఇవ్వాలనేది, 5 months కాదు, 1 year బెనిఫిట్ ఇవ్వాలనేది ఒక ఆలోచన. అయితే మేనేజ్మెంట్ ఎస్ అంటుందో నో అంటుందో చూడాలి. మన యూనియన్ లీడర్ యొక్క అభిప్రాయం మీరు కూడా చెప్పినప్పుడు అభిప్రాయాలు నేను చెప్తున్నా, అదొకటి. అట్లాగే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ 25 years దాని సర్వీస్ ఉంటే 5 months బెనిఫిట్ ఇస్తుంది. కానీ బిలో 25 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే 20 years, 22 years, 15 years అట్లా ఉంటే మనకి బెనిఫిట్ రావట్లేదు. దాని మీద ఏం చేస్తారనేది ఒక ప్రశ్న, మంచి ప్రశ్న. మనం అనేది ఏంటంటే యూనియన్గా మనం ఏం చెప్తామనంటే మీకు ఎలక్షన్స్ అనేది కాదు, కానీ మీకు డిమాండ్ చార్టర్ ఆఫ్ డిమాండ్స్ లెటర్ మేనేజ్మెంట్కి ఇచ్చే ముందు ఇంకొకసారి జనరల్ బాడీ పెడతాం. चार्टर ऑफ डिमांड्स मैनेजमेंट देने के पहले एक जनरल बॉडी लगाना पड़ता है। उसमें क्लियर बोल देता हूँ आप लोगों की क्या क्या लगाने के, क्या क्या वो चिट्ठी में क्या है वो पूरा बताता हूँ आपको. అప్పుడు వరకు మేము ఖాళీ చేసి సజెషన్స్ మాత్రమే. ఇప్పుడు మా ప్లాన్ ఏంటనేది మేము చెప్పగలుగుతున్నాం. కాబట్టి మనం 5 years, 6 years, 10 years, 15 years, 25 years, దట్ ఈస్ సెకండరీ. మనం రిటైర్డ్ అయినటువంటి ప్రతి ఎంప్లాయీకి ఒకే బెనిఫిట్ ఇవ్వాలనేది డిమాండ్ పెడతాం. 1 year బెనిఫిట్ ఇవ్వాలనేది డిమాండ్. मैनेजमेंट नेगोशिएशन लो नहीं नहीं उनको 10 साल भी नहीं है, 15 साल भी नहीं है, वैसा कह दे तो वैसा कह दे तो बोले तो वो बात अलग रहता. अपना यूनियन का डिमांड 15 साल होने दो सर्विस, 20 साल होने दो, 25 साल होने दो और एक्स्ट्रा 25 का ज़्यादा होने दो. किसी को भी कुछ रिटायरमेंट होने के टाइम पे 1 साल का बेनिफिट देना पड़ता है बोल के अपना डिमांड लगाना पड़ता है. बाद में मैनेजमेंट से नेगोशिएशन करके अंडरस्टैंडिंग में आना पड़ता है. वही దానికోసం అని చెప్పేసి అది 50,000 ఇస్తా ఉన్నారు ఎవరైనా చనిపోతే. సరేనా? అవి 20 दे रहे मर गए तो कितने दे रहे? 20,000. దానిని మనం 50,000 పెట్టాలనేది చెప్పారు. అంతేనా శ్రీనివాస్ చెప్పింది? ఎవరు చెప్పారు అది? कोई मर गए तो एम श्रीनिवास, कोई मर गए तो कितना देना बोल के जितने मन दे पाओ. हाँ 1 लाख दे रहे और 2 लाख देने के लिए ఓకే. ఆ డిమాండ్ కూడా మంచిది. దానికి యాక్ట్కి చట్టం కూడా ఉంది. ఆంటీలు చనిపోతే ఏం చేయాలనేది మన చట్టం కాదు, కానీ మనం డిమాండ్లో పెట్టచ్చు. 2 lakhs ఇవ్వాలనేది మనం పెట్టచ్చు. అట్లాగే శ్రీనివాస్ మాట్లాడాడు. హెల్త్ ప్రాబ్లం వస్తే రిటైర్డ్ అయితే మా చిల్డ్రన్స్ పరిస్థితి ఏంటి, మా పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి, మా భార్య పరిస్థితి ఏంటి, అది కూడా కరెక్ట్ పాయింట్. ఫ్యామిలీ మెయిన్ మెంబర్స్ మనం చనిపోతే లేదా హెల్త్ ప్రాబ్లం వస్తే డ్యూటీ చేయలేకపోతే ఎవరేమి ఇవ్వాలా? కొన్ని సంవత్సరాలు ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ దగ్గర డ్యూటీ చేస్తాం, 10 साल 15 साल. फिर बाद में क्या है अपना फैमिली की परिस्थिति क्या है बोल के पूछ रहे. क्या करना, कैसा करना, डिमांड में कैसे लगाना वो सोच के लगाना पड़ता है. थोड़ा लीगल एडवाइजर भी लेना पड़ता है. कोई इसका बारे में बात करने के అట్లాగే జైపాల్ మాట్లాడుతూ ఎన్నికలు నేను మీ అందరి దృష్టికి తీసుకొచ్చేది 2 पॉइंट. एक 2 यूनियन से अभी दूसरा यूनियन वाला अभी कोई आया नहीं है, हमको तो नहीं मालूम. अपना ये यूनियन क्या है, ये यूनियन CATU का यही रही तो अच्छा रहता बोल के मैं सोचते हैं CATU नेता का जैसा. మీరందరూ ఒప్పుకుంటే ఇదే యూనియన్ కొనసాగిన తర్వాత ఇదే యూనియన్ పద్ధతులలో డిమాండ్స్ పెడతాం.
మేనేజ్మెంట్తో. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఇదే యూనియన్ కొనసాగాలని అంటే మీరు సిగ్నేచర్స్ పెట్టారు కాబట్టి యూనివర్సిటీ ఎలక్ట్ దిస్ యూనియన్ అని చెప్పేసి మీరు చెప్తే మేము రాస్తాము. అదే లేబర్ కమిషనర్కే మేనేజ్మెంట్కి లెటర్ ఇస్తాం. అట్లా చేస్తే మంచిది అనేది ఒకే యూనియన్ అనుకుంటే అది అట్లా చేయొచ్చు. ఇక రెండోది జైపాల్ రేజ్ చేసిన పాయింట్ ఏంటంటే ఎలక్షన్స్ పెట్టాలని అన్నాడు. ఎలక్షన్స్ పెట్టాలంటే రెండు యూనియన్కి మధ్యన ఎలక్షన్స్ కాదు జైపాల్ ప్లాన్. ఇంటర్నల్గా యూనియన్ ఒకే యూనియన్ సిఐటి యూనియన్లోనే వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు ఉంటారు, జాయింట్ సెక్రటరీ ఎవరు ఉంటారు, जनरल सेक्रेटरी ఎవరు ఉంటారు అనేది ఇంటర్నల్ యూనియన్ में कुछ ఎలక్షన్స్ लगाना बोल के बोल दिया అంతే జైపాల్. దాన్ని మనం ఏం చేయొచ్చంటే దానికోసం ఎలక్షన్స్ వద్దు, నెక్స్ట్ జనరల్ బాడీలో మేము అడుగుతాం మీకు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇప్పుడు ఎవరు ఉన్నారనేది మీ పేరు చెప్తాం. వైస్ ప్రెసిడెంట్ పోస్ట్కి ఎవరైనా వస్తారా మేము అడుగుతాం. ఎస్ మైతో తయారే అని అన్నాడు అనుకో, ఆ క్యాండిడేట్ని కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఏం చేసినా మేనేజ్మెంట్ తోటి తగ్గపారుగా మాట్లాడే మనుషులు కావాలని అన్నాడు జైపాల్. అట్లా మనం ఇంటర్నల్ యూनियनగా పెట్టుకోవచ్చు. జాయింట్ सेक्रेटरीగా ఉంటానంటే अभी कौन है, आने वाला कौन है, बैठा के बात करने के दोनों का, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. कैसा भी अपना नया नया लीडर लोग की नौजवान लोग आए तो हम लोग को भी अच्छे है, थोड़ा अच्छे बात करने वाला है तो अच्छे है, थोड़ा लड़ने वाला है तो अच्छे है. आप लोग को मौका पूरा आप लोग की बोल देता मैं अभी जॉइंट सेक्रेटरी पालाना है और कोई जॉइंट सेक्रेटरी आने वाला है तो बोल दो, नाम देव बोल तो मैं वही जनरल बॉडी में पूछने के. ठीक है, इंटरेस्ट ఉన్న వాళ్ళు ఇస్తారు. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే దీనిలో ఎవరిని తగ్గించాలి, దీనిలో ఎవరెవరిని తగ్గించాలి, కొత్త వాళ్ళని ఎవరిని తీసుకోవాలనేది విత్ ఇన్ ద సిఐటి యూనియన్ के अंदर డిసైడ్ करेंगे. क्या జైపాల్ సही बात है ना? అట్లా చేయొచ్చు. మళ్ళీ సీక్రెట్ బ్యాలెట్ లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రావడం, వాళ్ళు వచ్చి కూర్చోవడం, ఎన్నికలు పెట్టడం, జిందాబాద్ మురదాబాద్ అనడం అట్లాంటివి వద్దు మనకి. ఎందుకనంటే ఎన్నికలు జరిగితే మేనేజ్మెంట్ లూజ్ అవుతాం మనం. ఓపెన్ ఎలక్షన్ ఓకే ఓకే రైట్, జైపాల్ కూడా ఓకే అన్నాడు. ఆ పాయింట్ మనం అట్లా ప్రొసీడ్ కావచ్చు. కాబట్టి దాంట్లో ఏ రకంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటే అందరూ రారు. మా వస్తే నేను అనుకోవడం माई एक्सप्रेशन 2 और 3 आदमी आते हैं, मैं लीडरगिरी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, ज़्यादा कोई नहीं आता. कहीं के लिए बोले तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, इधर बात करने को कोई आओ बोले तो कोई नहीं आता. ऐसे इधर नया आने वाला मैनेजमेंट का पास आके बात करो बोले तो आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता. అందుకోసమని అట్లాంటి ఛాన్స్ కూడా మీకు ఇస్తాం. విత్ ఇన్ ది యూనియన్ ఇంటర్నల్గా మనం కూర్చొని డిస్కస్ చేసి బాడీ పెట్టుకుని ఆ రకంగా యూనియన్ లీడర్ కూడా ఫైనల్ చేసుకోవచ్చు. మంచి మంచి సలహాలు వచ్చినాయి, మంచి మంచి సజెషన్స్ వచ్చినాయి. ఇవన్నీ కూడా మనం నోట్ తయారు చేస్తాము. నోట్ తయారు చేసి డిమాండ్స్ తయారు చేసి డిమాండ్స్ మేనేజ్మెంట్కి ఇచ్చే ముందు మీ అందరికీ చదివి వినిపిస్తాము. ఇక్కడ చిన్న చిన్న మార్పులు చేర్పులు చేయండి అని మీరు అంటే ఆ మార్పులు చేర్పులు కూడా చేస్తాము. ఫైనల్లీ మీలోకి కార్మికులు ఏం చెప్తే, వర్కర్స్ ఏం చెప్తే దట్ ఈజ్ ఫైనల్. అది చెప్పిన తర్వాత మాత్రమే మేము మేనేజ్మెంట్కి ఇస్తాము. బిఫోర్ మేనేజ్మెంట్కి ఇచ్చే ముందు డిమాండ్స్ కంటే ముందు మనం కొత్త బాడీని ఎన్నుకోవచ్చు. ఎక్కువ చేంజెస్ ఉంటే కొత్త బాడీని కూడా ఎన్నుకున్న తర్వాత మేము ఆ రకం డిమాండ్స్ ఇవ్వచ్చు. దీనికి అందరూ ఓకే అని అనుకుంటారని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఫైనల్లీ मैं एक बात बोलता हूँ, ఏ యూనియన్ అయినా ఎలక్షన్స్ వద్దు, ఇంటర్నల్గా లీడర్షిప్ చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇదే యూనియన్ కొనసాగుద్ది అని మేనేజ్మెంట్కి డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ లేబర్కి లెటర్ ఇవ్వాలి మనం. ఈరోజు జనరల్ బాడీలో జరిగినట్టు అట్లా ఇదే బాడీ కొనసాగుద్ది అంటే చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఉంటాయి. ఇదే బాడీ అంటే వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళు అందరూ దీంట్లో కూడా మార్పులు చేస్తాం. ఎవరెవరు పని చేయట్లేదు పిల్లలు వాళ్ళని పక్కకు పెట్టి కొత్త వాళ్ళు పనిచేయడానికి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరున్నారో వాళ్ళని కూడా పెట్టుకుని మేనేజ్మెంట్కి లెటర్ ఇస్తాం. మేనేజ్మెంట్కి ఇస్తాము, లేబర్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇస్తాము. ఇవ్వాలి కూడా అనేది రూల్. అట్లా ఇవ్వడానికి మీరందరూ కూడా ఓకే చెప్పాలి, అగ్రీ చెప్పాలి. అట్లా అగ్రీ చెప్పే వాళ్ళందరూ కూడా చేతులు పైకెత్తి లేదా చప్పట్ల ద్వారా మీ యొక్క అనుమతి ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాం. ఠీకేనా? ఓకే. అంటే మన బాడీ ఎన్నిక అయిపోయింది, మార్పులు చేర్పుల తర్వాత మనం జైపాల్ మేము అందరం కూర్చొని డిసైడ్ చేస్తాము. ఇట్లా ఎన్నిక అయినట్టు అయిన తర్వాత
ठीक है ना? ఇప్పుడు మళ్ళా ఒకసారి ఈ సిస్టమ్ బాగుంది, ఈ సిస్టమ్ ఓకే మాకు ఐ యామ్ అగ్రీ అనే వాళ్ళందరూ చేతులు పైకెత్తండి. ఓకే, మీ అందరికీ ఏకగ్రీవ ప్రత్యేకంగా ఏంటంటే అభివందనాలు తెలియజేస్తాము. సో మీరు వెళ్ళడానికి టైం అయింది కాబట్టి ఫైనల్గా మన యూనియన్ జనరల్ సెక్రటరీ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్తాడు. रवि कुमार है। बीमारी तो सबको आती, सबको बीमारी आती, सब उससे मरने वाले हैं। अब ये मैनेजमेंट हो या नरेंद्र मोदी हो या चंद्रशेखर राव हो, सब कोविड के साथ ही चलना है, जाने आने वाले नहीं है। इस वास्ते मैं खास तौर से ये बात कहना चाहूँगा, यहाँ का मैनेजमेंट हो, यहाँ का स्टाफ हो, यहाँ के सुपरवाइजर्स हो, जो भी हो, इस बात का कम से कम ख्याल रखिए कि किसी गरीब को दिल ना दुखाए। उसने जब ये कहा कि मेरी बीवी को जो है कोविड आ गया है, तो यहाँ जो उस बेचारे को कोई आने नहीं दिए या उससे बातचीत नहीं करे, उसको बाहर से बाहर बढ़ा दिए। तो मैं खास तौर से आप तमाम लोगों से, आप मगर क्या करें मालूम है, अंदर ऑफिस में नहीं आते कि इसकी बीवी को कोविड आ गया है, लिहाजा इसको अंदर मत आने दो बोले। इस सब चीज़ों के लिए आपको हमको इसकी भी मदद करना है। कल इसको आने वाला है, कल मुझे भी आने वाला है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लिहाजा मैं मैनेजमेंट से भी इस बात की गुजारिश करूंगा, अपने साथियों को भी गुजारिश करूंगा कि इस तरीके से किसी को नीचा मत दिखाएं और सबको अपने से गले लगाते हुए भाईचारे का एक मुजाहरा करेंगे। प्रेसिडेंट अली जनाब सैमुअल साहब जो आने वाले महीने में रिटायर्ड होने वाले हैं, और मैं समझता हूं कि कंटिन्यू एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट यही काम करेंगे अगर आप सबकी अनुमति अगर हो जाए तो। इसके साथ साथ मैं ईश्वरा साहब इसके साथ साथ मैं ईश्वरा साहब का, हमारे चीफ गेस्ट अली जनाब शमीउल हसन साहब का और बादशाह भाई का, राघवा का, और तमाम लेडीज जितने भी यहाँ बैठे हैं, और मेरे तमाम एम्प्लॉय जो नौजवान साथी और जितने भी जो सीनियर एम्प्लॉय बैठे हैं, उनको दिल की गहराइयों से मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज एक अच्छा जो है हमने एक अच्छा कदम उठाया है, अच्छे तरीके से काम करते हुए, अच्छे दिल से, सबको दिल से लगाते हुए, सब पुरानी बातें भूलते हुए, सब एक दूसरे से गले मिलते हुए आने वाले दिनों में बड़े पैमाने में हमारी जो है यूनियन चलेगी। मैं उन तमाम का, खासतौर से लेडीज़ का, तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और तकरीर का एहतराम करता हूँ। और आज सबसे पहले हमारे चीफ गेस्ट जो शमीउल हसन साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सैयद शमशाद सादरी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट निज़ाम तलब इस्कात यूनिवर्सिटी आप सब खाते हैं। आज कोविड के
खाते मिल गए। बाद आज हमारी पहली मीटिंग, बड़ी मीटिंग यहाँ पर निजाम कलर स्टाफ ये जनरल बॉडी मीटिंग थी, क्योंकि आने वाले महीने में हमारा नया इलेक्शन होने वाला है। अगर खुशकिस्मती की बात यह है कि जो दूसरी यूनियन भी थी वो यूनियन भी हमारे साथ मर्ज हो गई है। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि जब दो यूनियन एक हो जाएंगे तो हमारे तमाम मुतालबात हल करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। मैं तमाम निज़ाम क्लब के एम्प्लॉइज़ को इस बात का एश्योरेंस देना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जितने भी आपके मुतालबात हैं, जितने भी उनके जो है परेशानी है, दूर करने की हम कोशिश करेंगे। खुसूसी तौर पर जो एम्प्लॉइज़ रिटायर्ड हो रहे हैं उनके लिए जो क्या बेनिफिट देना है वो भी हम देंगे। ये आज का हमारा जनरल बॉडी का इजलास इसलिए मुनक़्क़िद किया गया था कि ताकि एम्प्लॉइज़ के तमाम मुतालबात को मालूमात हासिल करते हुए मैनेजमेंट को जो है किस तरीके से हम मेमोरेंडम सबमिट करेंगे। इंशाअल्लाह ताला 15 मार्च के बाद हम मेमोरेंडम सबमिट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आज निज़ाम क्लब स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन का ज़रा जनरल खोला बॉडी बाबा। लगाया। वो जनरल बॉडी में वर्कर्स अच्छे अच्छे सजेशंस दे दिया और अप्रैल 1 तारीख से नया एग्रीमेंट शुरू करना पड़ता है। इसका वास्ते हम मार्च 15 तारीख से नए डिमांड्स लगाने के। एक्चुअली कोविड के टाइम पे वर्कर्स का कुछ तकलीफ आया, मैनेजमेंट की तरफ से कुछ मदद नहीं मिले और वेलफेयर फंड और सब कुछ महंगाई बहुत बढ़ गई, सबको मालूम है। इसका वास्ते नया एग्रीमेंट में थोड़ा अच्छे बेनिफिट के लिए अपना CIT यूनियन कोशिश करेंगे। मैनेजमेंट से लड़ने को वर्कर सब लोग तैयार हैं।